السلام علیکم سر. سر ایک سوال تھا سر، نکرہ کی تعریف اور اس کی اقسام پر روشنی ڈال دیجیے سر. آواز ہلو جی جی سر. جی سر ایک سوال تھا ہوں نکرہ کی تعریف اور اس کی اقسام پر روشنی ڈال دیجیے سر. جیسے یہ جامد کی قسم ہے. جامد کی دو قسم ہے، ایک معرفہ اور ایک نکرہ. تو جی سر. معرفہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کیا ہے. تو معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے زاہد، زینب، علی، یا کوئی بھی پہاڑ جیسے ہمالیہ ہے وغیرہ وغیرہ، گنگا ہے، جمنا ہے، دجلہ، فرات. اب جیسے مثال کے طور پر زاہد فیروز شد، تو اس میں جو ہے کہ کامیاب کون ہوا؟ سننے یا پڑھنے والا جانتا ہے کہ زاہد کامیاب ہوا ہے، معلوم ہے پراپر نام ہے، تو یہ تو معرفہ ہے. اب نکرہ ہے، وہ اسم ہے جو ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کو بتائے، یا ایک ہی قسم کی کئی چیز کا نام ہو، جیسے کتاب، دریا، آدمی. اب کتاب میں کیونکہ کچھ پتہ بھائی بہت ساری کتابیں ہو سکتی ہیں، کئی لوگوں کی کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایک کتاب کا نام لے لیا جائے وہ تو معرفہ ہے، اور اگر صرف کتاب کا کہا جائے تو وہ نکرہ ہے. اور یہ متعین نہیں ہے، یعنی کامن ناؤن جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، وہ ہے نکرہ. اس کے علاوہ اس کے تو اقسام بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے وہ اس کی 9 قسمیں ہیں نکرہ کی. تو اب اس میں جیسے پہلا ہے، پہلی قسم ہے اسم فاعل. اسم فاعل. دوسری قسم ہے اسم مفعول، اسم حالیہ، حاصل مصدر، اسم اعلی، اسم مکبر، اسم مصغر، اسم صوت اور اسم ظرف. اب اسم فاعل کیا ہے یہ جاننا چاہیے. اسم فاعل وہ ہے یا وہ اسم ہے جو مصدر سے بنے اور کام کرنے کو بتائے. جیسے رفتن ایک مصدر ہے جس کے معنی ہے جانا، لیکن اسی سے اگر کوئی ایسا لفظ بنا لیا جو کام کرنے والے کو بتائے تو وہ اسم فاعل ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم نے رفتن مصدر کا نام لیا، رفتن کے معنی جانا، لیکن اگر ہم روندہ کہیں گے یا جدید فارسی میں روندے یعنی جانے والا، تو جانے والا یعنی کیا ہے؟ فاعل ہے. تو اس میں فاعل یا نکرہ، لیکن معلوم نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہے نکرہ. اور اس کی پہلی قسم اسم فاعل. یا گفتن مصدر ہے جس کے معنی ہے کہنا، اسی سے اگر کہیں گویندہ، کہنے والا. دانستن مصدر ہے جس کے معنی جاننا کے ہیں، اسی سے ہے دانندہ یعنی جاننے والا. اب یہ تو پیچ در پیچ ہے نکرہ کا معاملہ. اب اسم فاعل کی بھی 2 قسم ہے، اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سمائی. اب اسم فاعل قیاسی وہ اسم ہے جو امر حاضر واحد کے آخری حرف کو زیر دے کر
नून दाल हे लगाने से बनता है। अब रफ्तन है, मिसाल के तौर पर रफ्तन का अम्र क्या है, रो या ब्रो। तो अब रो पर नून दाल है लगाएंगे तो रविंदा हो गया। तो ये जैसा कि पहले मिसाल दी गई, इसमें फाइल भी है और इसमें फाइल कयासी भी है। तो दो किस्में है उसकी। अब एक है इसमें फाइल समाई। अब ये कई तरह से बनता है कि फहरिस्त बहुत लंबी है। अम्र हाजिर के आखिर में अलिफ ज्यादा करने से, जैसे दां है, अम्र है तो दाना ये हो गया, यानी जानने वाला। माजी मुतलक के आखिर में अर बढ़ाने से, जैसे खरीद से खरीदार। इसी तरह से अम्र हाजिर के आखिर में गार ज्यादा करने से, जैसे तलब से तलबगार। माजी मुतलक के आखिर में गार बढ़ाने से, जैसे परवर्द से परवरदिगार। तो इस तरह से गोया इसमें फाइल समाई बनाया जाता है। उसके बाद है इसमें मफूल। तो इसमें मफूल वो इसमें मुश्तक है जो मस्दर से बने और जिस पर कोई काम या फाइल का फेल वाक़ हो, जैसे आजुर्दा, कुश्ता। अब वही कयासी समाई इसमें भी है। फिर आते हैं इसमें हालिया पर। वो इसम है जो फाइल या मफूल की हालत बयान करे या उससे किसी काम का मुसलसल होना मालूम हो, जैसे खेज, खेजीदन है, खेजीदन से, या खेजा, खेज से खेजा, खराम से खरामा। ये अम्र हाजिर पर अलिफ नून बढ़ाने से बनता है। अब है हासिल मस्दर। वो इसमें है जो मस्दर से बने और उससे मस्दर की कैफियत या असर को समझा जाए, जैसे सोजिश कैफियत है या असर है। सोख्तन के माने जलना, सोजिश। इसी तरह से खलीश है, इसी तरह से दानिश है। और इसके भी कई तरीके हैं। इसके अलावा तो इसमें आला है। वो इसमें है जो काम करने के औजार को बताए, जैसे कलम है, तेग है, टीशा है, सूजन है, तीर है, दाम वगैरह वगैरह। ये इसमें आला, ये सब नकरा की ही किस्म है। फिर आते हैं इसमें मुकब्बर पर। तो वो इसम है जिससे किसी इसम की बड़ाई जाहिर हो, बड़ापन जाहिर हो। कोई चीज है उससे बड़ापन जाहिर हो, जैसे खेमा है, एक वर्ड है खेमा। तो अब उसमें अगर हम गाह लगा दें, जैसे गाह लगा दें तो खरगाह, बड़ा खेमा, शाह सवार, बड़ा सवार। इस तरह से ये किसी की बड़ाई, यानी खेमा तो है लेकिन अगर उसको हम बड़ा खेमा बनाना चाहें तो वो खरगाह हो जाएगा। इसी तरह से इसमें मुसग्गर है जिससे किसी इसम की छोटाई जाहिर हो, जैसे बाग है, अब वो बड़ा है। अब अगर छोटा बाग हो तो बागीचा कहते हैं। इसी तरह से दर है, दर के माने दरवाजा। अब छोटा दरवाजा यानी खिड़की, तो दरीचा बन गया, तो छोटाई जाहिर हुई, वगैरह वगैरह। अब इसमें सौत है जिससे जानदार या बेजान अशिया या अशखास की आवाज़ों को बयान करते हैं। अब जैसे कोयल है, कुकू, मियाऊ मियाऊ, बिल्ली की आवाज़ वगैरह। या पानी जो गिरता है सुराही से किलकिल किलकिल की आवाज़ आती है, तो वो या ये सब इसमें सौत है। इसी तरह से इसमें ज़र्फ है जो ज़मान यानी वक्त और मकान यानी जगह को बताए, जैसे खाबगाह, खाबगाह सोने का कमरा। इसी तरह जैसे मैकदा है, लालाजार है। और ये इसके भी बनाने के कई तरीके हैं। अब जैसे इसमें गाह लगा दिया या कदा लगा दिया, वगैरह वगैरह। इस तरह से गोया इसमें ज़र्फ बनाया जाता है। तो ये सब गोया नकरा की किस्में होती हैं। और कुछ सर एक सवाल था, मस्दर मुरक्कब पर रोशनी डालिए।
हाँ, तो मस्दर मुरक्कब, मस्दर तो मालूम है, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, जैसे रफ्तन, गुफ्तन, खुर्दन, तो ये सब मस्दर है। अब मस्दर मुरक्कब ज़रूरत के तहत कभी कभी ऐसा होता है कि मस्दर से पहले कोई लफ्ज बढ़ा देते हैं और एक मानीदार मस्दर बना लिया जाता है। जैसे करदन, करदन के माने करना। अब उससे पहले अगर हम बाजी लगा दें, बाजी करदन, खेलना, तो गोया ये एक तरह से मुहावरा भी है, मुहावरा भी बन जाता है और मस्दर मुरक्कब भी है। इसी तरह से जैसे करदन ही को लें, अगर करदन से पहले अगर गिरिया बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा? गिरिये करदन, यानी रोना। मस्दर तो करदन है, लेकिन उससे पहले कोई भी लफ्ज बढ़ा दिया जाए तो वो मस्दर मुरक्कब बन गया, कि मानीदार लफ्ज, मानीदार मस्दर गोया बन जाता है। और भी इसकी कई मिसालें हैं यहाँ, जैसे एक और शब्द है, जैसे तमाम शुदन, खत्म होना। शुदन के माने होना। अब अगर उससे पहले हमने तमाम लगा दिया तो तमाम शुदन, खत्म होना। इसी तरह से है खामोश करदन, लफ्ज करदन है, उससे पहले खामोश लगा दिया तो क्या हो गया ये? अब से आज किसी स्विच को बंद करते हैं या चिराग वगैरह को बुझाते हैं तो उस माने में ये इस्तेमाल होता है, खामोश करदन, बुझाने के माने में, बंद करना या ऑफ करना। फारसी में कहावत है, जहमत कशीदन, कशीदन के माने मेहनत करना, तकलीफ उठाना। मस्दर मुरक्कब, मस्दर से पहले कोई लफ्ज बढ़ाकर नया मस्दर बनाया जाता है और वो बामानी हो जाता है। सर मेरा एक सवाल है, फेले मारूफ व मजहूल में क्या फर्क है? फेले मारूफ या फेले मालूम भी कहा जाता है उसको। जी सर। वो फेल है जिसका फाइल मालूम, जैसे शाहिद हामिद रा कुश्त, यानी शाहिद ने हामिद को मारा या पीटा, तो इसमें किसने किसको मारा ये तो मालूम हो गया, यानी शाहिद ने मारा किसको? हामिद को। यानी इसमें फाइल कौन हुआ? शाहिद। और किसको मारा? हामिद को। तो हामिद यानी जिस पर काम खत्म हो, तो इसमें तो गोया इसका फाइल मालूम हो गया कि मारने वाला कौन है। लेकिन अगर इसी को कहा जाए कि फेल मजहूल, यानी वो फेल है जिसका फाइल मालूम ना हो। अब इसी जुमले को अगर हम या दूसरा जुमला बना लें, जैसे हामिद कुश्ते शुद, हामिद मारा गया। अब किसने मारा कुछ पता नहीं है, पहले वाले जुमले में तो मालूम है कि किसने मारा है, दूसरे वाले जुमले में पता नहीं चल रहा है कि किसने मारा है, तो ये फेल मजहूल है, यानी जिसका फाइल मालूम ना हो वो फेल मजहूल है। या इसी तरह से नामा नविश्ते शुद, खत लिखा गया, अब किसने लिखा नहीं मालूम। किताब ख्वांदे शुद, किताब पढ़ी गई तो पढ़ने वाला मालूम नहीं है, तो ये गोया मजहूल। बुनियादी फर्क यही है कि जिसका फाइल मालूम हो वो फेल मारूफ है, जिसका फाइल मालूम ना हो वो फेल मजहूल। शुक्रिया सर। इसी से मिलता जुलता सवाल फेल लाजिम और मुतअद्दी का भी है, यानी लाजिम वो फेल है जो फाइल पर तमाम हो जाए और मफूल का मोहताज ना हो, यानी उसमें मफूल की जरूरत नहीं पड़ती है, फाइल पर ही तमाम हो जाता है। जैसे किसी का भी नाम ले लें, अली अहमद,
एक मुकम्मल जुमला है कि अली आया, जैनब रफ, जैनब गई, तो गोया मान क्लियर है। तो और ये क्या कहलाएगा? फेल लाजिम। और फेल मुतअद्दी जो फाइल और मफूल दोनों को चाहे, दोनों की जरूरत पड़ती है इसमें। लाजिम में मफूल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मुतअद्दी में फाइल और मफूल दोनों की जरूरत पड़ती है। और बगैर मफूल के जुमला पूरा ना हो। जैसे कोई भी नाम ले लें, एहतशाम किताब ख्वांद। अब इसमें जो है कि वो भी है, फाइल भी है और मफूल भी है। या शाहिद चाय खुर्द, शाहिद ने चाय पी, या नौशीद। तो इनमें शाहिद क्या है? फाइल, और जैसे ख्वांद है, खुर्द है, नौशीद है, ये मफूल है, यानी इस पर पीने पर खत्म हुआ, ये है नाम। सर एक और सर, जामिद की कितनी किस्म है? जामिद की 2 किस्म है, अभी बताया गया था, एक मारफा और एक नकरा। अब नकरा की तो तफसील बता दी गई, लेकिन अब मारफा ये है कि वही डेफिनेशन तो बता दिया गया था कि किसी खास शख्स, चीज, जगह का नाम हो और वो मुतय्यन हो, फिक्स हो। अब इसकी भी मारफा की यानी कई किस्में हैं। जैसे अलम है, ज़मीर है, इशारा है, मौसूल है, मऊद है, मुज़ाफ है और मुनादा है। तो अब तफसील की गुंजाइश तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे एक अलम को लेते हैं, तो अलम की 5 किस्में हैं। कुन्नियत और खताब, लक़ब, उर्फ और तखल्लुस। अब कुन्नियत किसे कहा जाता है? यानी नाम ही है, ये भी इसमें है तो नाम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो उस नाम को कहते हैं जो किसी खानदान या रिश्ता की बिना पर बिलखुसूस माँ बाप, बेटा या बेटी के नाम से मुनासिबत रखता हो या मरबूत हो, मिला हुआ होता है, या तो बाप के साथ, माँ के साथ, या फिर बेटा और बेटी के साथ। जैसे अब 1-2 मिसाल लेते हैं। जैसे अबुल कासिम या उम्मे सलमा। तो इसको मिसाल के तौर पर इस तरह समझा जा सकता है कि जैसे किसी शख्स का नाम इमरान हो और उसके बेटे का नाम कासिम हो, मगर इमरान खुद को कहे कि मैं अबुल कासिम हूँ, यानी अपना नाम वो इमरान नहीं बताएगा, बल्कि क्या बताएगा? अबुल कासिम, यानी कासिम का बाप। तो यहाँ इमरान की कुन्नियत क्या हो गई? अबुल कासिम हो गई, यानी बेटे की वजह तरफ मरबूत है, तो वो गोया कुन्नियत है। इसी तरह से कासिम खुद को कहे कि मैं इब्ने इमरान हूँ, दोनों तरह से इसको किया जा सकता है। या तो वो कहे कि अबुल कासिम हूँ, या ये कहे, बेटा कहे कि मैं इब्ने इमरान हूँ। जैसे आमतौर पर शोरा के नाम में रहता है फला बिन फला बिन फला, इस तरह से है, ये है। जैसे अभी उम्मे सलमा का नाम लिया गया, जैसे किसी औरत का नाम फातिमा हो और उसकी बेटी का नाम सलमा हो, तो फिर फातिमा कहे, क्या कहेगी कि मैं उम्मे सलमा हूँ, और तो फातिमा की कुन्नियत उम्मे सलमा होगी और सलमा की कुन्नियत बिनते फातिमा होगी। इसी तरह से जैसे खताब है, तो जो नाम बादशाहों, सरकारों या बुजुर्गों की तरफ से दिया जाए उसे खताब कहते हैं। जैसे किसी का नाम गयास बेग हो, मशहूर नाम है, ये अकबर के दौर में ईरान से हिंदुस्तान आया था, और जहांगीर के वक्त में तो एक तरह से सफेद स्याह का मालिक था। उसकी बीवी नूरजहां बेगम इसी की बेटी थी, मलिका। तो अब उसे जो है कि खताब क्या दिया गया? एतमादुद्दौला का। बहुत से दिए जाते हैं, तो गोया किसकी तरफ से दिया गया? बादशाह की तरफ से। या आजकल दिया जाता है पद्मश्री का, पद्म भूषण का, तो ये सब खताब कहलाता है। या सर दिया जाता है, अगर सर का खताब दिया करते थे, तो बादशाह
सरकार या बड़े बुजुर्गों की तरफ से जो नाम दिया जाए वो है खिताब। अब इसी तरह से तीसरी किस्म है लक़ब। तो वो नाम जिससे किसी शख्स का वस्फ जाहिर हो, खूबी जाहिर हो, या किसी खास सिफत की वजह से ये खिताब मिले। जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती को लेते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती, तो उसे क्या नाम दिया गया? ताजुल शरीयत। या निजामुद्दीन औलिया सुल्तानुल हिंद, तो इसमें ताजुल शरीयत और सुल्तानुल हिंद क्या है? लक़ब है। अब आते हैं उर्फ पे, यानी वो शख्स जो अपने प्रॉपर नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए। जैसे किसी का नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन नाम तो बदला जाए, तो छोटा बच्चा होता है तो उसे नाम बिगाड़ के प्यार से कुछ रख लेते हैं। नाम तो है अब्दुल रहमान, लेकिन माँ बाप घर के दूसरे अफराद बचपन में ही उसे रहमू रहमू कह के अगर बुलाना शुरू करें तो वो बुढ़ापे तक उसका वो नाम रह जाता है। तो वह नाम के साथ किसी दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो है उर्फ। इसी तरह से तखल्लुस है मारफा की 5वीं किस्म या अलम की 5वीं किस्म। तो उस नाम को कहते हैं जो शोरा अपने शेर में लिखते हैं। जैसे अबुल कासिम फिरदौसी, अब्दुल रहमान जामी, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। तो इसमें फिरदौसी, जामी, गालिब ये सब तखल्लुस है। तो ये गोया मारफा की पहली किस्म है। इसी तरह से ज़मीर है, वो तो आमतौर पर सबको मालूम ही है कि जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है या कायम मकाम इसम कहलाता है, और जुमले में वो तकरार से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फारसी में ऊ है, ई है, आ है, मन है, माँ है, तू है, शुमा है, तो ये सब ज़मीरें हैं। और कुछ अब ज़मीर में भी मुत्तसिल, मुनफसिल और मुश्तरक है। अब मुनफसिल जो अलहदा शक्ल में लिखा जाए, मुत्तसिल नाम से ही पता चलता है कि मिला हुआ हो। तो मुनफसिल जो अलहदा लिखा जाए, जैसे मन है, माँ है, या खाना मन, खाना माँ, लेकिन जो मिला के न लिखा जाए, जो मिला के लिखा है मुनफसिल में तो अलग हो गया, लेकिन मुत्तसिल में मिला के लिखा है। तो जैसे किताबत है, किताबम है, किताबश है, ये गोया मिल गया। अगर इसी को हम कहते किताब मन तो अलग अलग है, या किताबश है तो ये गोया मुत्तसिल। अब आजकल जैसे एक और ज़मीर का नाम लिया जाता है, ज़मीर मुश्तरक या ज़माइर ताकीदी, यानी वो ज़मीर जो तीनों अशखास मन, तो और वाहिद और जमा के लिए मुश्तरक और यकसा तौर पर बगैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल हो। अब मुश्तरक के लिए ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, खुद, खेशतन और खेश। जैसे मन खुद, खुद मन, खुदम। अब जुमले में अगर इस्तेमाल करेंगे, मन बराए खुदम कारमी कुनम, तो ये है ज़मीर मुश्तरक। इसी तरह से एक और किस्म है मशहूर मुज़ाफ, यानी कभी कभी 2 इसमों में लगाव होता है, तो जिस इसम या कलमा का लगाव हो उसे मुज़ाफ, और जिस चीज़ की तरफ लगाव हो उसे मुज़ाफ इलैह कहते हैं। जैसे किताब अहमद, इसमें किताब मुज़ाफ और अहमद मुज़ाफ इलैह है। जिस हर्फ या अलामत के ज़रिए लगाव दिखाया जाए वो अलामत इजाफत है, यानी या तो ज़ेर लगाते हैं या फिर हमजा या ये लगा के बढ़ाते हैं। फारसी में अलामत इजाफत
کبھی زیر کبھی حمزہ اور کبھی یا مقصور ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر میں نے ایک کہا کتاب احمد، اسی طرح سے اگر حمزہ کا استعمال دیکھیں گے تو بندہ خدا، یا پھر کسی یہ کا استعمال کریں گے تو کوئے فاطمہ، کوئے زینب، کوئے روبینہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے مثالیں دی جاتی ہیں، یا دریائے گنگ وغیرہ. اور مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تب آج تو آدھے گھنٹہ کا وقت ہے، وقت پورا ہونے کو ہے. پھر جس کو جو کچھ پوچھنا ہو وہ نیکسٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. ٹھیک، تب پھر Thank you, sir.